dq by t. Right. So you have started with this formula where inequality holds true for irreversible process and equality holds true for reversible process. Then we have evaluated change in entropy for various processes like isothermal, isobaric, isochoric, adiabatic. And then I have given an example in topic 3 where we have seen conversion of 10 gram of ice, let's say at minus 10 degrees Celsius, till 10 gram water vapors at 110 degrees Celsius. During this journey from initial to final point, there were in total 5 different kind of processes. इन 5 प्रोसेसेस में से 3 प्रोसेस तो नॉर्मल हीटिंग थे जहां पर टेम्परेचर बदल रहा था, और 2 प्रोसेस फेज ट्रांजिशन थे जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा था, फेज सिस्टम का स्टेट बदल रहा था. सो व्हेन state of the system changes, then change in entropy is given by this formula, delta Q by m T. And since during a phase transition, temperature remains constant. During a phase transition, temperature T remains constant. So therefore, temperature comes out of this integral. Integral dq gives you delta Q. Delta Q for phase transition is mass into my latent. So therefore, change in entropy during a phase transition is given by this formula. Similarly, when a body is heated, when a body of mass m and specific heat capacity C is heated from temperature, let's say T1 till temperature T2, then change in entropy in going from T1 to T2, it is given by integral dq by T, where limit goes from initial temperature T1 to final temperature T2. dq can be replaced by, किससे replace करोगे dq को? m c t over में t, T1 से T2. So this gives you mc natural logarithm of t, limit goes from T1 to T. So that gives you mc ln of T2 minus ln of T1. ln of T2 minus ln of T1 gives you ln of T2 by. So this is change in entropy का formula whenever a body of mass m and heat capacity C is heated from temperature T1 to T2. So in short हमने बस इतना ही देखा था पिछले लेक्चर. After that I asked you to try first 50 questions, right? But 50 नहीं कर पाओगे, शुरू के 25-26 क्वेश्चन लग गए होंगे, right? If I ask you guys कि शुरू के 25 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर है, बता सकते हैं? शुरू के 25 क्वेश्चन एक बार काउंट करके क्विकली बता सकते हैं, रफली बता सकते हैं कितना स्कोर है आपका, कितने हो गए आपसे? 20. सॉरी 22. Okay. 22. Gitanjali 21. 20, sir. 22 for 2 girls, then 20 and then 20, sir. 20. So 17. 17, 15. 20, sir. 15, 20, 20. 18. 18, So 22. 22, 16. 16, 14, sir. 14, So 20. 20. Not bad. Okay, not bad. Chalo, good. ठीक है, very good. So what I'm going to do is I'm going to cover up various theoretical parts, but while teaching you those theory parts, I will be quoting some examples, right? So that it will be easy for you to try these questions. And then at the last of my class, I will announce various questions which you need to try as your homework today. तो शुरू करते हैं फिर. ठीक है, कोशिश करना कि जो भी मैं यहाँ पे आज पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने से पहले आपको आना चाहिए. ठीक है, मैं कुछ सिनेरियो डिस्क्राइब करूंगा, उसके बाद आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइस सम क्वेश्चंस. ठीक है, ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस. आना चाहिए आपको. थिंक एज इफ कि सर इज नॉट टीचिंग एनीथिंग न्यू. टॉपिक नंबर 4 डाल लीजिए. In this, I'm going to take 3 examples. Case 1, case 2 and case 3. देखो बोर्ड पे देखो, फिर बाद में नोट कर लेना. सपोज आपके पास 2 रिजर्वॉयर्स हैं. रिजर्वॉयर बोलने का मतलब क्या स्पेशल प्रॉपर्टी आपने एसोसिएट कर दी इस बॉडी के साथ कि ये रिजर्वॉयर बन जाए. रिजर्वॉयर का क्या मतलब होता है? रिजर्वॉयर का क्या मतलब कांस्टेंट होगा. Temperature. कैपेसिटी नहीं थी. हाँ? लार्ज इन साइज. लार्ज इन साइज. इसका साइज बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से इसकी हीट कैपेसिटी इज Infinite. it is infinite. C tend towards infinity, right? So let's say that this is reservoir R1. Reservoir R1. And let's say कि इसका टेम्परेचर है T1. टेम्परेचर है T1. इनिशियली मान लेते हैं कि ये रिजर्वॉयर आइसोलेटेड है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Since this is isolated, so therefore its boundary will be adiabatic, rigid and impermeable. Adiabatic, rigid and impermeable. Similarly, let's say you have another reservoir. एक और रिजर्वॉयर ले लो R2. That is also having isolated boundary, that is adiabatic, rigid and impermeable. So this is reservoir R2. And let's say this is lying at temperature T2. Let us say that T1 is greater than T2. क्योंकि इनके बीच में शुरू में adiabatic wall है, तो इन दोनों के बीच में कोई हीट का फ्लो नहीं होगा. ठीक है,
मान लीजिए कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए मैं बीच की दीवार को एडियाबैटिक की जगह बना देता हूं थर्मली कंडक्टिंग कुछ टाइम के लिए। लेट्स से कि दिस वॉल इज डायाथर्मिक। डायाथर्मिक वॉल का मतलब होता है थर्मली कंडक्टिंग। तो हीट कहां से कहां फ्लो करेगी ऑन इट्स ओन? फ्रॉम रिजर्वॉयर 1 टू रिजर्वॉयर 2, फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर। ठीक है, मान लेते हैं कि Q amount of heat has flown from, let's say, let Q amount of heat has flown from reservoir 1 to reservoir 2, right? So क्या इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा? Is it so? क्या T1 घटेगा, T2 बढ़ेगा? Is it so? इसके रिस्पॉन्स में no. रीजन है कि ये रिजर्वॉयर है, राइट? They will be exchanging heat without any change in the temperature. ठीक है, तो इसके रिस्पॉन्स में there won't be any change in the temperature of the two reservoirs. My question to you guys is, what is change in entropy of reservoir 1, what is change in entropy of reservoir 2, and what is change in entropy of this combined system? ठीक है, ये निकालना है। बट उससे पहले एक्चुअल में हम वैल्यू निकालें उससे पहले कुछ समझते हैं। देखो हीट कौन लूज कर रहा है इन दोनों में, R1 और R2 में हीट लूज कौन कर रहा है? R1। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, एक्स्ट्रा बट इंपॉर्टेंट। पहले अब इस पे अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, फिर बाद में हम एक्चुअल में नंबर्स निकालेंगे। हमारी अंडरस्टैंडिंग हमको कहती है कि सिंस R1 इज लूजिंग हीट, so therefore reservoir 1 is losing randomness. यहां पे randomness कम हो जाएगी and entropy is randomness. So therefore मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि change in entropy of reservoir 1 should come out to be negative या positive? Negative, डिक्रीज होनी चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यार R1 ना हीट लूज कर रहा है, मतलब वो randomness लूज कर रहा है, तो मतलब उसकी एंट्रोपी घटनी चाहिए। ये मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं, देखते हैं आता नहीं आता। सिमिलरली अब ये सब लिखूंगा नहीं, since R2 is gaining heat, so therefore R2 reservoir R2 is gaining randomness, so therefore I expect the change in entropy of reservoir 2 should come out to be a positive number. It should be a positive number. R1 और R2 को अगर मैं combinedly देखूं तो जो ये combo है, ये कैसा सिस्टम है? ये combined system कैसा सिस्टम है? Can I call this combined system to be an isolated system? Can I call this combined system to be an isolated system? Yes or no? Yes, sir. क्या इस combo को, इस पूरे combo को मैं एक isolated system का नाम दे सकता हूं? भाई जो भी हो रहा है ना बेटा, वो R1 और R2 के बीच में ही तो हो रहा है। R1 हीट दे रहा है, R2 हीट ले रहा है, बट ये दोनों मिल करके बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं? Is it so? No, sir. No, sir. So I can comfortably call this combined system to be an isolated system. अच्छा, एक बार अगर ये हीट चली गई, क्या अपने आप दोबारा वापस आ सकती है from colder to hotter? No, No, sir. No. इसका मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये भी कहती है कि ये हीट फ्लो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। So according to second law of thermodynamics, change in entropy of isolated system undergoing an irreversible change should be a positive number. Yes or no? It should be greater than Yes, sir. 0. यही करा था हमने अकॉर्डिंग टू सेकंड। इसका मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे इतना सा बता पा रही है कि विदाउट इवन कैलकुलेटिंग दीज नंबर्स, मैं इतना तो पता लगा पा रहा हूं कि ये दोनों नंबर्स का सम, इस नेगेटिव नंबर का सम और इस पॉजिटिव नंबर का सम कुछ ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी ग्रेटर देन positive. ये चीज समझ में आई सबको? अंडरस्टैंडिंग सबको समझ में? यस और नो? दैट Yes, चेंज sir. इन एंट्रोपी Yes, sir. ऑफ दिस कंबाइंड सिस्टम शुड कम आउट टू बी अ पॉजिटिव नंबर। नाउ लेट अस चेक कि ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो देखते हैं, लेट्स सी। फॉर रिजर्वॉयर 1, फॉर गर्म रिजर्वॉयर, for reservoir R1 which is lying at temperature T1, change in entropy for reservoir 1, it is integral dq by t, and it is losing heat at constant temperature T1. So T बराबर T1 comes out of this integral dq gives you delta q, and delta q for reservoir 1 कितना है? delta q for reservoir 1 कितना है? q के टर्म्स में बताओ, Negative. q के टर्म्स में बताओ कितना है? it is equal to minus of q, minus, क्योंकि q is the amount of heat that has flown from this to this. तो डेल्टा क्यू फॉर रिजर्वॉयर 1 कितना होगा? इसने इतना दिया तो मतलब नेगेटिव। ओके, सिमिलरली फॉर रिजर्वॉयर R2, ठीक है, नेगेटिव नंबर आना चाहिए था, नेगेटिव नंबर आ गया, सही बात है। फॉर रिजर्वॉयर R2 क्या होगा बताओ, आप लोग गाइड करो, अब तो बहुत इजी है। रिजर्वॉयर R2 is gaining heat at temperature T2. T2. It is gaining heat, but its temperature is constant. It will come out of the integral. Integral dq will give you delta q. Delta q for reservoir R2 is कितना? It is gaining heat. It is gaining q amount of heat. Plus Q. So it is plus. ठीक है, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए था, पॉजिटिव नंबर आ गया, सही है। व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स? फॉर यूनिवर्स, अब आपको पूछा है क्वेश्चन में कि यूनिवर्स की एंट्रोपी कितने से बदली, तो आप क्या कहोगे? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस कंबाइंड सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। बताओ सराउंडिंग का इस क्वेश्चन में क्या रोल है? कोई रोल है इस क्वेश्चन में? सराउंडिंग No, के साथ sir. कुछ भी छेड़छाड़ हो रही है इस क्वेश्चन में? No, sir. नहीं हो रहा ना। इसका मतलब डेल्टा सराउंडिंग कितना होगा यहाँ पे? 0. Zero. इसका मतलब change in entropy of universe will be same as change in entropy of this combined system, and change in entropy of combined system will be sum of change in entropy of reservoir 1 plus change in entropy of reservoir 2। दोनों को जोड़ दो, नेगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर,
ओवरऑल देखो, चेक करके बताओ, ये जो नंबर निकल के आया है 1 ओवर में T2 माइनस 1 ओवर में T1, ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर? पॉजिटिव देख लो ना यार, T1 Positive. बड़ा कौन छोटा कौन? T1 is greater than T2. Since T1 is, so 1 over में T1 is lesser than 1 over में T1 is lesser than, so therefore this number is greater than, and hence second law of thermodynamics is valid here. According to second law of thermodynamics, entropy of universe या entropy of an isolated system, entropy of universe या फिर entropy of an isolated system undergoing irreversible change, undergoing, कोई complete कर दो स्टेटमेंट को, undergoing irreversible change, always, Always increases. ठीक है, undergoing irreversible change, स्पेलिंग देख लेना, always increases, सही है यार, ठीक है। Can you give an example where two reservoirs are exchanging heat? ऐसा एग्जांपल जहां पे दो रिजर्वॉयर्स आपस में हीट का लेन देन कर रहे हो। ऐसा एग्जांपल जहां पे दो रिजर्वॉयर्स हीट का लेन देन कर रहे हो। Carnot engine. कार्नोट इंजन में दो रिजर्वॉयर हीट का लेन देन नहीं कर रहे, डायरेक्टली थोड़ी ना लिंक होते हैं वो, उनके बीच में तो एक वर्किंग सब्सटेंस भी होता है जो एक से हीट उठाता है, दूसरे को देता है और कुछ वर्क करता है। सर सराउंडिंग और कोई पार्क में चढ़ने वाला इसका Ocean and surrounding. हाँ, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है, आपने देखा होगा रील्स में, देखा होगा कि दो रिवर्स आके मिल रही हैं, दो डिफरेंट कलर की रिवर्स संगम हो रहा है कहीं पे, यस और नो? तो वो दो रिजर्वॉयर्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ दिस, कि दो रिजर्वॉयर्स आपस में हीट का लेन देन कर रहे हैं। सो दिस इज केस 1 स्टूडेंट्स, केस 1। केस 1 में क्या था? दो रिजर्वॉयर्स आपस में हीट का लेन देन कर रहे हैं। नाउ केस 2। केस 2 इज, ऐसा सोचो कि आप किसी नदी के किनारे बैठे हो और आप उसमें आइस क्यूब्स को ड्रॉप कर रहे हो। यू आर ड्रॉपिंग फ्यू आइस क्यूब्स इनटू अ वाटर लेक, ठीक है? तो यहां पर किस किस के बीच में हीट का लेन देन हो रहा है? इस एग्जांपल में किस किस के बीच में हीट का लेन देन हो रहा है? क्या होगा जैसे ही आप आइस क्यूब को एक वाटर लेक में करोगे, क्या होगा? कहां से कहां हीट फ्लो होगा? वाटर ऑफ लेक, वहां से हीट का फ्लो होगा टू द आइस मॉलिक्यूल्स, ठीक है? कब तक होगा हीट का फ्लो? जब तक दोनों का टेंपरेचर सेम ही ठीक है, मैं ये इरेज कर रहा हूं, ये डायग्राम एक सेकंड कर लो, नोट कर लो। ओके सर चले आगे चले। यस सर 7 सर इसको इरिवर्सिबल सेंस क्यों पढ़ रहे हो? इसमें तो रिजर्वायर 1 से 2 में हीट जाने में कोई तो लॉस नहीं हो रहा है। हाँ, तो एक बार अगर हीट फ्लो हो गया, लेट्स से एक बार हीट, कुछ अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो गया, क्या अपने आप हीट कोल्डर रिजर्वॉयर से होटर में आ सकता है क्या? Yes, sir. इज इट No, पॉसिबल? sir. कोल्ड से हॉट नहीं। No, sir. दैट इज व्हाई दिस चेंज, दिस फ्लो ऑफ हीट इज इरिवर्सिबल इन। देखो एक एग्जांपल देखो, लेट्स से यू हैव वाटर लेक, लेट्स से कि वाटर लेक का टेम्परेचर ना कितना चल रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 298 केल्विन। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाटर लेक में ना कुछ आइस क्यूब ड्रॉप कर देता हूँ। 5 ग्राम आइस क्यूब्स एट -10 डिग्री सेल्सियस, वो मैंने इसमें ड्रॉप कर दिया। बताओ क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा क्या होगा? हीट एनर्जी कहां से कहां फ्लो करेगी, पहले तो ये बता दो। रिवर टू आइस है ना, रिवर टू आइस। अच्छा, हीट एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम रिवर टू आइस, जिसके रिस्पॉन्स में क्या होगा बताओ? आइस का टेम्परेचर -10 था, -10 से चेंज होकर क्या होगा? ग्रेजुअली बढ़ेगा ना, -9, -8, -7, ऐसे करते 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 कहां तक पहुंच जाएगा? 0 तक। Zero. बट अभी भी आइस रहेगा, राइट? अभी भी आइस रहेगा, बट अभी भी इसका टेम्परेचर कम है इन कंपैरिजन टू वाटर लाइंग इनसाइड द वाटर लेक। तो हीट का फ्लो चलता रहेगा। अब क्या होगा? इट विल अंडरगो कौन सा प्रोसेस? फेज ट्रांजिशन। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस विल कन्वर्ट टू, इट विल मेल्ट एंड इट विल कन्वर्ट टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। हीट का फ्लो अभी भी चलता रहेगा, हीट का फ्लो अभी भी चलता रहेगा। और फिर पानी का टेम्परेचर, वो वाले पानी के मॉलिक्यूल्स जो आइस से पिघल के आए हैं, उनका टेम्परेचर अब 0 से राइज करना शुरू होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एंड ग्रेजुअली चलता जाएगा। कहां तक चलता जाएगा ये हीट का फ्लो? कब तक चलता जाएगा? जब तक 298 जब तक इन वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कितना ना हो जाए। 298 केल्विन। अच्छा, इनके बारे में कुछ कोट करोगे? जो वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर लेक में लाई कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर 25 रहेगा या घटेगा? क्योंकि हीट तो लूज कर रहे हैं ना यार, वो हीट तो लूज कर रहे हैं, फिर सेम क्यों रहेगा? सर लेकिन इसका मतलब आप लोग समझते हो, इसका मतलब आप लोग समझते हो, केस 2 इज एन एग्जांपल वेयर अ बॉडी ऑफ फाइनाइट मास एंड फाइनाइट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C is in thermal contact with a reservoir, right? A body of mass m and specific heat capacity C at temperature T1, it is in thermal contact with reservoir at temperature T2. So this example is lying in this category.
इसका चलो एक डायग्राम बना लेते हैं, इसी स्टेटमेंट को एक डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट करते हैं। दो ब्लॉक्स बना लो, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 इज बॉडी जिसका मास है m, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है c, टेम्परेचर है T1। इट इज इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद रिजर्वायर। रिजर्वायर इज लार्ज इन साइज, तो मैं थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं इसको। दिस इज रिजर्वायर lying at temperature T2. Let us say that T1 is greater than T2. आप उल्टा भी ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं जहां मैंने माना है कि T1 is greater than T2। मान लो एक आपने आयरन का बॉल लिया और उसको हीट करा टिल 1200 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक उसका कलर हो जाएगा रेड। एक हॉट बर्निंग आयरन बॉल जो रेड इन कलर हो चुकी है, इतना गर्म कर दिया, और उसे आपने ड्रॉप कर दिया एक वाटर लेक में। तो दैट कैन बी एन एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। तो हीट का फ्लो कहां से कहां होगा ऑन इट्स ओन? कहां से कहां फ्लो होगा हीट का? ये बीच की वॉल डायथर्मिक है, कहां से कहां फ्लो होगा? अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल हीट विल फ्लो फ्रॉम Body to reservoir. बॉडी टू रिजर्वायर। हीट विल फ्लो फ्रॉम बॉडी टू रिजर्वायर। कब तक? लिख देता हूं मैं यहाँ पे, हीट विल फ्लो फ्रॉम बॉडी टू रिजर्वायर। कब तक? कब तक ये फ्लो चलता रहेगा? अनटिल और अनलेस। कब तक? It will be अनटिल और अनलेस। कब तक? T1 become T1 equals to T2. देखो ना, आप समझो ना, जैसे जैसे ये हीट लूज करेगी बॉडी, T1 घटना चालू होगा और T2 के साथ क्या होगा? क्या T2 बढ़ना चालू होगा? ना, क्योंकि वो रिजर्वायर है, उसका टेम्परेचर तो T2 ही रहेगा। तो इसका मतलब हीट का फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक बॉडी का टेम्परेचर T1 से घट करके कितना ना हो जाए? T2. T2. T1 reduces and become equal to T2। हीट का फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक बॉडी का टेम्परेचर T1 से ठंडा होकर के T2 के बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब कितना हीट फ्लो कर जाएगा, ये कैसे निकालें? कितना हीट फ्लो कर जाएगा? अगर बॉडी का टेम्परेचर मैं चाहता हूं कि T1 से डिक्रीज होकर के T2 हो जाए, तो ऐसा करने के लिए बॉडी को कितना हीट लूज करना होगा? सो अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय बॉडी, amount of heat lost by body in order to decrease its temperature from higher temperature T1 to lower temperature T2। कितना हीट लूज करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय बॉडी कितना? कैसे निकालोगे? मास इनटू में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू में T2 minus T1 minus T2 T2. minus T1. ठीक है। अभी देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर T2 minus T1, कुछ बच्चे कह रहे हैं T1 minus T2। क्या लगाऊं? T1 minus T2 लगाऊं या T2 minus T1? T2 minus T1. T2 minus T1. आप ऐसा सोच रहे हो ना कि सर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर बॉडी का कितना है? फाइनली बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जा रहा है? T2 हो जा रहा है, और इनिशियली कितना था? T1 है, तो इसलिए आप फाइनल में से इनिशियल घटा दे रहे हो। बट मैंने पूछा क्या है? अमाउंट, मैग्नीट्यूड, अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट, कितना अमाउंट। तो अमाउंट के लिए हमेशा बड़े में से छोटा घटाओगे। बड़ा कौन है? तो देयरफॉर इट विल बी T1 minus T2. ठीक है, बिकॉज़ इट इज अमाउंट। अमाउंट पूछा मैंने। अगर यहीं पे मैंने पूछा होता डेल्टा क्यू ऑफ बॉडी, कि बॉडी ने कितना हीट एक्सचेंज किया, बॉडी ने कितना हीट का लेन देन किया, तो आप क्या बोलते हैं? मास ऑफ बॉडी इनटू में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इनटू में फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जिसको मैं रीराइट कर सकता हूं और ऐसे लिख सकता हूं MC T1 माइनस T2। तो इसमें देखो दोनों बात आ गई। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? कि बॉडी इज लूजिंग हीट। और कितना हीट लूज कर रही है बॉडी? कितना हीट लूज कर रही है, राइट? बात समझ में आई? अगर मैंने पूछा होता हीट एक्सचेंज बाय बॉडी, एक्सचेंज, कितना हीट एक्सचेंज हुआ, तो एक्सचेंज में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो आपको आंसर अपना करेक्ट साइन के साथ देना होगा। बट देखो यहाँ मैं पूछ क्या रहा हूँ? अमाउंट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यू को मैं क्या शो कर रहा हूँ? क्यू इज अमाउंट। तो अमाउंट लिखते वक्त आप हमेशा पॉजिटिव नंबर लिखोगे, पॉजिटिव नंबर लिखते वक्त बड़े में से छोटा घटा। ओके, फाइन 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 फाइन, लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिखा रहने दो। अपने को निकालना है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ बॉडी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ बॉडी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। उससे पहले आप लोग साइंस प्रेडिक्ट करो, कौन नेगेटिव होना चाहिए, कौन पॉजिटिव, कौन नेगेटिव, कौन पॉजिटिव, बताओ जल्दी से। सिंस बॉडी इज लूजिंग या गेनिंग? Losing. Losing. So therefore it is losing randomness, it is losing entropy, and hence delta S body should be a Negative. Since reservoir is Positive. Gaining. Gaining. that is gaining Positive. randomness, so therefore it is gaining entropy. Since this exchange of heat, एक बार अगर बॉडी का टेम्परेचर T1 से ठंडा होकर के T2 हो जाए, तो अपने आप क्या हीट का फ्लो रिजर्वायर से बॉडी में हो सकता है? No, sir. No, sir. अपने आप नहीं होगा, राइट? Irreversible. So therefore this change is reversible या irreversible? Irreversible. Irreversible. Change in entropy of universe undergoing irreversible change is always a Greater than positive number. greater than This is always a positive number. इसका मतलब इन दोनों का जोड़, इन दोनों का सम एक ऐसा नंबर आना चाहिए कि एक वो पॉजिटिव नंबर निकल के आए। So this is my understanding. This is my understanding. Now let us evaluate these numbers. ठीक है, आप निकाल के देखते हैं। So for body,
चेंज इन एंट्रोपी इट इज इक्वल टू dq by t। टेम्परेचर कहां से कहां बदल रहा है बॉडी का? इनिशियल टेम्परेचर कितना है बॉडी का? T1 फाइनली कितना हो जा रहा है? T2 dq किसके बराबर होगा बॉडी के लिए? बॉडी का मास m गिवन है, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, तो dq को मैं क्या लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? dq बराबर mc dt। mc dt आंसर आ गया mc ln of आपने तो कहा था नेगेटिव आना चाहिए, ये तो पॉजिटिव आ गया है ना। सिंस आप लोगों को दिख रहा है कि सिंस t2 इज छोटा देन t1, सो देयरफॉर ln of t2 by t1 विल बी अ नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आना चाहिए था, नेगेटिव आ गया, राइट, गुड। रिजर्वॉयर के लिए निकाल लेते हैं। फॉर रिजर्वॉयर डेल्टा एस आर इट इज इक्वल टू इंटीग्रल dq by t। टेम्परेचर ऑफ रिजर्वॉयर इज अ कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, टेम्परेचर नहीं बदलेगा, एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू T2 which is a constant, it will come out of the integral dq will give you delta q for reservoir कितना है in terms of q बताओ, in terms of q बताओ, delta q for reservoir plus q या minus q, it is gaining heat या losing heat? plus Q it is gaining q amount of heat, और q आप ऊपर निकाल चुके हो, q is equal to mc T1 minus T over में T। so this is change in entropy of reservoir। सर डेले सर को तो दोबारा बोलो। नहीं से समझ गए। ठीक है, so therefore change in entropy of universe कितना होगा? जोड़ दो इन दोनों को, ऐड कर दीजिए। हाँ बोलो। सर हम लोग जब बॉडी या रिजर्वायर का निकाल रहे हैं एंट्रोपी, तो इक्वल का साइन ले रहे हैं, तब इसमें इरिवर्सिबल या इरिवर्सिबल एक बार चेक नहीं करेंगे? Although you are very correct नंदनी, ठीक है। I was wondering कि किसी स्टूडेंट ने कोई डाउट क्यों नहीं पूछा। देखो नंदनी का डाउट है कि सर आप एक जगह तो बोल रहे हो कि ये चेंज कैसा चेंज है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल, ठीक है। फिर भी आप एंट्रोपी का चेंज निकालने के लिए क्या यूज कर रहे हो? इक्वालिटी या इनइक्वालिटी? कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा एस इक्वल टू या डेल्टा एस ग्रेटर देन? ग्रेटर, तो इक्वल कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंदनी को प्रॉब्लम हो रही है, एंड शी इज वेरी करेक्ट ऑन हर पार्ट कि सर ये क्यों हो रहा है, हम इक्वल क्यों यूज कर, यही डाउट है ना आपका? यस सर। ठीक है, तो बेटा देखो, चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी इट्स अ स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। सो चेंज इन एंट्रोपी विल रिमेन द सेम चाहे आप कोई भी पाथ ले लो, सही है? यस सर। कंडीशन क्या है कि आपको क्या नहीं बदलना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट आप नहीं छेड़ सकते। यस सर। ठीक है, तो देखो बॉडी के लिए जब मैं निकाल रहा हूँ तो मैंने इनिशियल टेम्परेचर कितना रखा है? T1, फाइनल कितना रखा है? T2। तो मैंने इनिशियल और फाइनल नहीं छेड़े, मैंने अपने मन में प्री अज्यूम कर लिया कि लेट मी रिप्लेस द एक्चुअल इरिवर्सिबल प्रोसेस by some arbitrary reversible process where the initial point is now T1 only and final point is T2 only. So under that assumption I can replace the irreversible process by reversible process and hence I can use the equality sign. समझ में आया नंदनी? यस सर। ठीक है, so that is why I have used equal sign. I haven't changed initial and final point, I have replaced the irreversible process by reversible process by some arbitrary reversible process. ठीक है, अब देखो इन दोनों का जो जोड़ निकल के आएगा, that will be mc ln of T2 by T1 plus mc T1 minus T2 by में T1, एंड आप देखेंगे कि ये एक पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा। आप चाहें तो इसमें एक एग्जांपल रख के देख सकते हैं। T1 को आप 400 रख लीजिए केल्विन और T2 को आप 300 केल्विन रख लीजिए, फिर वो T2 है। ठीक है। आप ये दोनों नंबर्स निकाल के देखना, इट विल कम आउट टू बी अ पॉजिटिव नंबर। इन दोनों नंबर्स को निकालोगे, उनका जोड़ करोगे, इट विल कम आउट टू बी अ पॉजिटिव नंबर। सो दिस इज केस 2। इसका कोई और एग्जांपल बताओगे? केस 2 का एग्जांपल, केस 2 का एग्जांपल, मान लो गर्म पानी लेके आया, बहुत गर्म पानी, लाइक 40 डिग्री सेल्सियस पे, और मैंने इस बोतल में डाल रखा है और फिलहाल उसको यहाँ रूम में लाके रख दिया। तो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? हॉट वाटर इनसाइड द प्लास्टिक बॉटल इज केप्ट एट दिस टाइम करंटली इन माय रूम। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट विद दिस सिस्टम? क्या होगा ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम बीतेगा, क्या होगा? हीट लॉस करेगा। कौन हीट लूज करेगा? कौन हीट लूज करेगा? वाटर किसको लूज करेगा? सराउंडिंग को। इसका मतलब यहाँ पे कौन किसके कांटेक्ट में है? रूम के कांटेक्ट में बोतल है। Water lying inside this plastic bottle is in thermal contact with the surrounding air molecules. इसका मतलब इस एग्जांपल में कौन किसके कांटेक्ट में है? एक बॉडी जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, हायर टेम्परेचर है, दैट इज लाइंग इन थर्मल कांटेक्ट विद अ रिजर्वॉयर, विद द सराउंडिंग। क्या होगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हीट लूज करना शुरू करेंगे, टेम्परेचर 40 से गिरना चालू होगा, 39 होगा, 38 होगा, 37 होगा, एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम बीतेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर काफी टाइम बीतने के बाद क्या हो चुका होगा? पैरेलली अगर सराउंडिंग के टेम्परेचर की बात करें तो उसका टेम्परेचर क्या बढ़ेगा? उतना ही रहेगा, राइट? सो यस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी लाइंग इन थर्मल कांटेक्ट विद अ रिजर्वॉयर। अ बॉडी का मतलब अ सिस्टम ऑफ फाइनाइट मास एंड फाइनाइट हीट कैपेसिटी लाइंग इन थर्मल कांटेक्ट विद अ रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर एक ऐसी बॉडी है जो बहुत लार्ज इन साइज है। क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है, इसी की वजह से इसकी हीट कैपेसिटी इज
इनफाइनाइट फाइनाइट। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा टी। मतलब अगर मुझे रिजर्वॉयर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना है, मान लो डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री केल्विन है, 1 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इफ Infinite. डेल्टा टी इज 1 डिग्री सेल्सियस तो डेल्टा क्यू कितना आ गया? इनफाइनाइट इसका मतलब अगर मेरे को रिजर्वॉयर का सराउंडिंग का टेम्परेचर 1 डिग्री से घटाना है या बढ़ाना है तो कितना हीट देना पड़ेगा या कितना हीट निकालना पड़ेगा? इनफाइनाइट है ना? इसका मतलब यही हुआ कि मैं रिजर्वॉयर को सराउंडिंग को कितना ही हीट दे दूं, उसका टेम्परेचर कितना रहने वाला है? T2 उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। अच्छा, क्योंकि रिजर्वॉयर एक ऐसी बॉडी है जिसका साइज बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए क्वेश्चन में कभी भी आप नहीं देखोगे कि इसका एग्जामिनर आपको क्या प्रोवाइड करे, मास, और क्या प्रोवाइड करे, स्पेसिफिक, क्योंकि दोनों की वैल्यू ही इनफाइनाइट है, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू इनफाइनाइट। एग्जांपल 2 समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया एग्जांपल 2? यस और नो? यस Yes, sir. चलो देखते हैं कितना आया। अभी एक एग्जांपल 3 मैं यहाँ पे कोट करूंगा, वो आप लोग अभी करके दिखाओ। केस 3, एग्जांपल 3, जल्दी से नोट कर लो, ये फटाफट। सर वाटर बॉटल हीट लूज करेगा तो उसका मॉलिक्यूल का रैंडमनेस डिक्रीज करेगा, तो जितना अमाउंट डिक्रीज करेगा सराउंडिंग का भी ओवरऑल उतना अमाउंट इंक्रीज करेगा, तो डेल इज जीरो, ओवरऑल तो जीरो ही होगा। नहीं होगा। ये किसने बोला कि एंट्रोपी उतने से ही बढ़ेगा उतने से ही घटेगा? ये बात सही है कि जितना हीट बॉडी लूज करेगा उतना ही हीट सराउंडिंग गेन करेगा, बट इस लूज और हीट, इस रिजेक्शन ऑफ हीट और गेनिंग ऑफ हीट के रिस्पॉन्स में एंट्रोपी सेम अमाउंट से बदलेगी। ये किसने बोला? सर रैंडमनेस चेक करे तो इट वॉन्ट रैंडमनेस या एंट्रोपी वॉन्ट चेंज बाय द सेम अमाउंट। ठीक है, होल क्रक्स लाइज इन द फैक्ट दैट कि change in entropy of body, that's a negative number, change in entropy of reservoir is a positive number, and these two numbers are such in value that their sum will overall be a positive number, which is in confirmation with second law of thermodynamics. According to second law of thermodynamics, universe की entropy किसी भी irreversible change के दौरान कभी भी घट नहीं सकती, ना constant रह सकती, it will always increase. देयर इज एनी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन? ये जितनी भी बातें हैं, अच्छा ठीक है, सपोज लेट्स से कि अभी आपको एंट्रोपी नहीं समझ में आ रही कि एंट्रोपी है क्या, सर ने तो बस एक फॉर्मूला लिखवा दिया ds इक्वल टू dq by d, हम इसको रैंडमनेस से कैसे रिलेट करें? सो सिट, hold your positions tightly. All your questions will be comfortably answered in my chapter 8, which is statistical mechanics. There I will beautifully relate this entropy with randomness. ठीक है, अभी एंट्रोपी रैंडमनेस से कैसे रिलेटेड है, आई डोंट थिंक कि आप रिलेट कर पाओगे. Once we study microstates and macrostates, after that it will be crystal clear to you guys कि how I can relate entropy with randomness. ओके सर। है ना? हाँ, need not to worry. डन ना? चलो यार केस 3 करके दिखाओ, ठीक है? करके दिखाना प्लीज, सक्सेसफुली करके दिखाओगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ कुछ समझ में आया है. देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं पहले. सपोज ऐसा कुछ है, अभी हम ना आइस क्यूब्स को ड्रॉप कर रहे थे वाटर लेक में, तो वाटर लेक एक बहुत बड़ी बॉडी थी, तो इसलिए एक फाइनाइट साइज की बॉडी कांटेक्ट में थी एक रिजर्वॉयर के साथ. अब हम क्या कर रहे हैं, एक कप ले रहे हैं, इसमें पानी भर रखा है, लेट्स से 80 ml ऑफ वाटर या 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर, लेट्स से एट 80 डिग्री सेल्सियस, गर्म है, गर्म पानी लिया हुआ, 100 ml ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस. इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, कुछ आइस क्यूब्स को ड्रॉप कर दे रहे हैं, 10 ग्राम आइस क्यूब्स एट लेट्स से -10 डिग्री सेल्सियस. क्या होगा, हीट एनर्जी कहां से कहां फ्लो करेगी बताओ, कहां से कहां फ्लो करेगी हीट एनर्जी? वाटर से आइस From ice to water. वाटर से आइस. ठीक है, वाटर से आइस सही है. यहाँ पे सिस्टम आइडेंटिफाई करो, कौन किसके कांटेक्ट में है, कितने सिस्टम आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में? दो सिस्टम दिखाई पड़ रहे हैं, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2. सिस्टम 1 कौन है? 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, और सिस्टम 2 कौन है? 100 ml वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस. सही है. सिस्टम 1 और सिस्टम 2 आइडेंटिफाई करो कि इनमें से बॉडी कौन है और रिजर्वॉयर कौन है. सिस्टम 1 और सिस्टम 2 इनमें से बॉडी कौन है और रिजर्वॉयर कौन है, या दोनों ही बॉडी है? दोनों ही बॉडी। दोनों ही बॉडी है. कैसे जज किया? क्योंकि दोनों का साइज फाइनाइट है, फाइनाइट साइज इनफाइनाइट नहीं है. अच्छा तो क्या होगा, जैसे जैसे हीट एनर्जी फ्लो करेगी, जैसे जैसे हीट एनर्जी फ्लो करेगी वाटर से आइस में, आइस का टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, और सिस्टम 2 का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा डिक्रीज होना चालू होगा, और फाइनली
एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब दोनों सिस्टम का टेम्परेचर किसी कॉमन फाइनल टेम्परेचर पे जाकर के सेटल हो जाएगा, जब सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके होंगे, और जो वो फाइनल टेम्परेचर होगा वो पक्का पक्का कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा -10 और 80 के। सही है या नहीं है? बोलो, ये होगा या नहीं होगा यहाँ पे? Yes, sir. सही है ना? Yes, sir. तो ये एग्जांपल तो बाद में करेंगे, पहले हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? अ बॉडी B1 of mass M1, specific heat capacity C1 and temperature T1 is in thermal contact. It is in thermal contact with body B2 of mass M2, specific heat capacity C2 and temperature T2. ठीक है? इतनी सारी कथा कहानी को अगर मुझे डायग्राम के थ्रू दिखाना हो, देख लो पहले बोर्ड पे देख लो, फिर बना लेना। वो कैसे दिखाएंगे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू? एक कोई बॉडी है B1 जिसका मास है M1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है C1, टेम्परेचर है T1। ये थर्मल कॉन्टैक्ट में है विद अनदर बॉडी B2, मास M2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2, टेम्परेचर T2। क्योंकि थर्मल कॉन्टैक्ट में है इसलिए बीच की दीवार मैंने कैसी बनाई है? थर्मली कंडक्टिंग, डायाथर्मिक बनाई है मैंने, इसलिए मैंने उसे डबल करके शेड नहीं किया। और क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हीट का लेन देन किस किस के बीच में हो रहा है, किस किस के बीच में हो रहा है? बॉडी 1 एंड बॉडी 1 एंड बॉडी 2, इसीलिए मैं स्मार्टली इस बॉडी 1 और बॉडी 2 को पैक कर दूंगा इन कैसी दीवार, इन कैसी वॉल्स के थ्रू पैक कर दूंगा मैं इसको? एडियाबैटिक, रिजिड एंड इम्पल्स। मतलब कि बॉडी 1 और बॉडी 2 को मिला करके बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मतलब बॉडी 1 और बॉडी 2 को मैं इन कॉम्बिनेशन बोल सकता हूं कि बॉडी 1 एंड बॉडी 2 का जो कॉम्बो है दैट इज इक्विवेलेंट टू एन आइसोलेटेड बॉडी। जो भी हो रहा है इन दोनों के बीच में हो रहा है, बाहर की सराउंडिंग से इन दोनों को कोई लेना देना नहीं है। लेट्स से दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हीट का फ्लो कहां से कहां होगा? बताओ रे बच्चों, हीट का फ्लो कहां से कहां होगा? B1 to B2. फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी 2। कब तक होगा? हीट फ्लो will take place from body 1 to body 2 until or unless, कब तक यार, कब तक होगा बताओ ना बच्चों? until or unless body 1 का टेम्परेचर T1 से घट करके TF ना हो जाए एंड बॉडी 2 का टेम्परेचर T2 से बढ़ करके TF ना हो जाए, such that TF is lying somewhere in between T1, T2. ठीक है ना? मतलब सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे थे कि सर हीट का फ्लो तब तक चलेगा जब तक दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ कौन से इक्विलिब्रियम में ना आ जाए? थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जब तक सर बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये हीट का फ्लो चलता रहेगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है TF कितना, फाइनल टेम्परेचर कितना, कैसे निकालूं? TF का एक्सप्रेशन निकालना है, TF कितना? इंटीग्रेशन T फाइनल टू T। देखो जरा देखो, M1 C1 T1 plus M2 C2 देखो अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय बॉडी 1। बॉडी 1 ने जितना हीट लूज किया वो बराबर है किसके? अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय बाय बॉडी 2, क्योंकि जो भी हो रहा है इनके बीच में हो रहा है। सही है, बॉडी 1 ने कितना हीट लूज किया? M1 C1, बॉडी 1 की बात कर रहे हैं ना, तो मास ऑफ बॉडी 1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी 1 टाइम्स किसमें से क्या घटाऊं? बताओ, बॉडी 1 का टेम्परेचर T1 से घट के TF हो जा रहा है, तो किसमें से क्या घटाऊं? T1 माइनस मतलब T1 माइनस TF करूं या TF माइनस T1 करूं? बताओ, अमाउंट पूछ रहा हूं ना आपसे, अमाउंट। तो बड़े में से छोटा घटाओगे, बड़ा कौन है? छोटा कौन है? TF। तो सही कह रहे हो, T1 माइनस TF। ऐसे ही बताओ, अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय बॉडी 2, M2 TF माइनस बड़ा माइनस छोटा, TF माइनस T2। सही है, गुड। अब क्या करो, TF वाली टर्म्स को ना कलेक्ट कर लो एक साइड। तो M1 C1 T1 तो यहीं पे रह जाएगा, और M2 C2 T2 वहां नेगेटिव साइन के साथ था, इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में M1 C1 TF पॉजिटिव साइन के साथ, और M2 C2 TF भी पॉजिटिव साइन के साथ। तो TF कितना हो गया बच्चों? देखो, M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 डिवाइडेड बाय में M1 C1 प्लस M2 C2। मैं इसको जनरलाइज्ड फॉर्मेट में, शॉर्ट हैंड फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, समेशन ओवर में I MI CI TI, फिर I goes from 1 to 2 डिवाइडेड बाय में समेशन ओवर में I goes from 1 to 2 MI CI। ठीक है, सो दिस विल बी द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जहां पे हीट का फ्लो रुक जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
what will be change in entropy of body 1, what will be change in entropy of body 2, what will be change in entropy of isolated system universe. बता दो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव. डेल्टा इज बॉडी 1 नेगेटिव या पॉजिटिव. Negative. बॉडी 2 Positive. Positive. और इन दोनों का सम विल कम आउट टू बी Positive. पॉजिटिव नंबर. व्हाई? बिकॉज़ दिस चेंज इज Irreversible. irreversible. And according to second law of thermodynamics, change in entropy of universe undergoing irreversible change is a positive. Always greater than. सही है. तो अब निकालने हैं तीनों नंबर्स निकालने हैं अपने को. चलो बॉडी 1 के लिए निकालते हैं पहले. फॉर बॉडी 1 जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड. निकालो. चलो आप लोग ट्राई करो एक बार. MC ln T final upon T1. कैसे निकाल रहे हो बॉडी 1 के लिए बताओ. फॉर बॉडी 1 कोई गाइड करेगा मेरे को. फॉर बॉडी 1 बहुत आसान है यार. डेल्टा एस ऑफ बॉडी 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल dq by t फॉर्मूला वही यूज करना है. टेंपरेचर कहां से कहां बदल रहा है. बॉडी 1 का टेंपरेचर कहां से कहां बदल रहा है. 1 TF. इनिशियल टेंपरेचर इसका T1 है, फाइनल टेंपरेचर TF है. यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं सोचना. जो इनिशियल है वो इनिशियल पे लगाओगे, जो फाइनल है वो फाइनल पे लगाओगे. dq की जगह क्या लिखोगे बॉडी 1 के लिए. dq की जगह क्या लिखोगे m1 c1 dt. कितना आ जाएगा ये m1 c1 ln ऑफ. TF upon TF. TF 21. है ना. सिमिलरली बता दो यार. सिमिलरली बता दो. अब तो आसान है. बॉडी 2 के लिए क्या होगा M2 ln TF by T2. है ना. m2 c2 ln ऑफ. और ये देख भी पा रहे होगे आप क्योंकि TF is छोटा देन T1, so therefore ln of TF by T1 will come out to be a negative number. Negative. Since TF is बड़ा देन T2, so it will come out to be a positive. ठीक है. Change in entropy of universe. Universe की entropy कितने से बदली. It will be sum of these two, LH1 plus LH2. so it will come out to be m1 c1 ln of TF by T1 plus m2 c2 ln of TF by में T2. ये आ जाएगा. चाहो तो इसको थोड़ा सा और लिख सकते हो और ऐसे लिख सकते हो. अब देखो किस किस को डाइजेस्ट हो रहा है ये. देखो मैं सही लिख रहा हूँ या कुछ गलत कर रहा हूँ. चेक कर लो. सही किया है मैंने. ये सही लिखा है. चेक कर लो. ठीक है ना. सही लिखा है ना. ये सर. Yes, sir. ओके ओके. नोट कर लो यहाँ तक. डन सर. डन. गुड. बाकी लोग करो फटाफट करो नोट. Done, sir. Done, sir. Done, sir. डन सर. डन डन. गुड 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 गुड. Done, sir. ओके जी. चलो ठीक है आगे चलते हैं. इसका एक स्पेशल केस देखो. इसका एक स्पेशल केस देखो. मान लो जो दो बॉडीज आप ले रहे हैं वो दोनों बॉडीज सिमिलर बॉडीज हो जाएं. सिमिलर बॉडीज. सिमिलर से आप क्या समझते हैं. जैसे अगर एग्जामिनर ये वर्ड यूज कर दे कंसीडर टू सिमिलर बॉडीज. सिमिलर एक जैसी बॉडीज. एक जैसी बॉडी मतलब कि अगर ये पानी है तो ये भी पानी है. ये अगर अल्कोहल है तो ये भी अल्कोहल है. ये अगर इथेनॉल है तो ये भी इथेनॉल है.
तो जैसे ही दोनों बॉडीज सिमिलर हो जाएंगी, दोनों का कौन सा प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा? क्या सेम हो जाएगा दोनों का? M1 C1 स्पेसिफिक M1 C1 हीट कैपेसिटी, मास नहीं, मास नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिमिलर बॉडीज का मतलब ये नहीं है कि मास सेम हो गया। सिमिलर का मतलब हो गया कि अगर एक पानी है तो दूसरा भी पानी है, बट उनका अमाउंट अलग हो सकता है। सिमिलर का मतलब कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज आर सेम। ओके, इसके साथ साथ मान लो ये भी बोल दे ऑफ सेम मास, तब आप क्या लोगे? m1 बराबर m, m1 बराबर m2। तो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना हो जाएगा यार? फॉर्मूला क्या था? क्या निकल के आया था? m1 c1 t1 प्लस m2 c2 t2 डिवाइड बाय में m1 c1 प्लस m2 c2। c1 c2 दोनों c के बराबर, m1 m2 दोनों m के बराबर। क्या हो जाएगा? देखो mc कॉमन आ गया और नीचे ट्वाइस mc बन गया, तो क्या आ गया फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर? अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन आ गया ना दोनों का? Yes sir. सही है, डाइजेस्ट भी हो रही है ये बात, अरिथमेटिक मीन आना भी चाहिए था। सही है, तो बॉडी की एंट्रोपी कितने से बदली? बॉडी 1 और बॉडी 2 की निकाल लो, और यूनिवर्स की कितने से बदली निकाल लो स्पेशल केस के लिए। सो डेल्टा एस ऑफ बॉडी 1 इट विल बी इक्वल टू m1 m हो जाएगा, c1 c हो जाएगा, ln ऑफ tf बाई t1। ऐसे ही डेल्टा एस ऑफ बॉडी 2 इट विल आल्सो बी इक्वल टू mc ln ऑफ tf बाई t2। सो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स विल बी सम ऑफ दीज टू, mc कॉमन आ जाएगा, ln ऑफ tf का स्क्वायर बाय में t1 t2, जिसको मैं ऐसे रीराइट कर सकता हूँ। चेक कर लो, कर सकता हूँ या नहीं? 2 को मैं नीचे ले आऊंगा, आगे पावर को नीचे ले आऊंगा, ट्वाइस mc ln ऑफ tf डिवाइडेड बाय में स्क्वायर रूट ऑफ t1 t2, और tf मैं निकाल चुका हूं ऊपर अरिथमेटिक मीन, so it will come out to be twice mc ln of t1 plus t2 by में twice square root of t1। So this is a special case when two bodies are similar and of same mass, then this formula, yeah, this final expression reduces to this simple formula। क्लियर है ना तीनों एग्जांपल सबको? यस और नो बताओ बच्चों। Yes, Yes, sir. Yes sir. yes. चलो चलो ठीक है, गुड। कर लो, नोट कर लो फटाफट। सर एक डाउट था। बताओ समीर, बोलो। सर एंट्रोपी चेंज में हम जो बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है उस टाइम को तो इंक्लूड कर ही नहीं रहे हैं। वॉल्यूम बदल रहा है या नहीं? मतलब क्वेश्चन है कि क्या बदल रहा है। हाँ सर, जैसे आइस वाले एग्जांपल में भी देखा था, आइस का वॉल्यूम जैसे कम हो यू हैव अ पॉइंट, ठीक है, बट यहाँ पे फिलहाल कोई भी स्टेट का चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे सिर्फ बॉडी 1 का टेम्परेचर T1 से घट के TF हो जा रहा है, बस दैट्स इट। बट अगर स्टेट का भी चेंज होगा समीर, अगर मान लो आइस पानी में कन्वर्ट हो रही है, तो आपको डेल्टा एस बॉडी 1 निकालने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब आपको कुछ टर्म्स और लेनी पड़ेगी, ml/t वाली भी। वो ऐसे एग्जांपल्स हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन या ये एग्जांपल सॉल्व करते हुए मैंने फेज का चेंज बिल्कुल नहीं माना है। मैंने सिर्फ ये माना है कि बॉडी 1 का टेम्परेचर सिर्फ T1 से चेंज होकर TF हो जा रहा है, बस, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं है। सर कोई सॉलिड बॉडी हो उसके अंदर उसका सिर्फ फेज चेंज ना हो, सिर्फ साइज ही चेंज हो जाए तो वो इंक्लूड करेंगे हम एंट्रोपी में। हाँ, मतलब अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है देन फॉर श्योर हमें वॉल्यूम का फैक्टर काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। बट फिलहाल जो एग्जांपल मैंने लिया है समीर, उसमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। मतलब देखो ऐसा कुछ है कि 10 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 20 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या होगा? सिर्फ बॉडी 1 और बॉडी 2 का सिर्फ टेम्परेचर बदलेगा, ठीक है ना समीर? यस सर। बट जो आप बात बोल रहे हो उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ी सी और सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होगी। ऐसे क्वेश्चंस हैं आपकी बुकलेट, वो आप ट्राई करोगे, ठीक है। या चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप समीर ने पूछ ही लिया है तो लेट अस ट्राई अ क्वेश्चन। मैं भी अनाउंस करता हूं कौन सा क्वेश्चन आपको करके दिखाना है सबको। ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 5।
ट्राई क्वेश्चन नंबर 39 JNU 2016। समीर इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एक बार ट्राई करो बेटा, सब लोग ट्राई करो। सर ये ट्राई किया था, इसमें ये ऑप्शन आ रहा है मेरा, मैच नहीं रहा। चलो चलो करो करो, बाकी लोग करो करो, इसको दो अभी 3-4 मिनट दो, इस क्वेश्चन को लेगा ये आराम से 3-4 मिनट लेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 JNU 2016। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट विल टीच यू समथिंग। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, सब लोग अच्छे से ट्राई करना, अच्छे से खुला खुला सॉल्व करना इसको।